Hi friends, in today's session we start with the vitamins. That is the third part of this chapter, that is biomolecule. We already completed in first session, that is carbohydrates. Second session we already completed with protein part, that is amino acid part. Now we move on to this third part, that is called vitamins. So it has been observed that a certain organic compound are required in small quantity in our diet, but their deficiency causes स्पेसिफिक डिसीजेस मीन्स बेसिकली कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऐसे थे जो बॉडी को डे टू डे लाइफ में चाहिए ही होंगे. अगर उसकी मात्रा कम हुई तो स्पेसिफिक डिसीज भी हो सकते हैं. दिस कंपाउंड्स आर नोन एज विटामिन्स. सो ऑल विटामिन्स आर जनरली अवेलेबल इन अवर डाइटरी सप्लाई. मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ अगर आप डाइटरी सप्लाई लोगे तो उसके अंदर से ऑलमोस्ट सारे विटामिन्स कवर हो जाते हैं. सो they are generally regarded as means vitamins का definitions तो नहीं है basically, but general terms क्या है तो organic compounds required in the diet in a small amount to perform a specific biological functions for the normal maintenance of this optimum growth and the health of the organisms. This is entitled as vitamins. This is not the particular definitions of vitamin. Vitamin की कोई basic definition नहीं है, but this is हाउ टू अंडरस्टैंड विटामिन क्या है बेसिकली वो समझने के लिए दो लाइन बताया गया हुआ है. सो विटामिन्स आर डेजिग्नेटेड बाय अल्फाबेट्स A B C D. मेनी मोर आर ऑल्सो देयर. सम ऑफ देम आर फर्दर नेम सब ग्रुप्स. जैसे विटामिन बी आप सभी को पता है सब डिवाइडेड हो रहा है. दैट इज B1 B2 B6 B12 एक्सेट्रा. Now most important line, excess of vitamins is also harmful and the vitamin pill should not be taken without the advisory of the doctor. Fine. अब ancient belief क्या था? Ancient belief was the term vitamin MINE was coined by vital amine. Ancient belief was जितने भी NH2 containing component है means amines है. vital means जरूरी, body के अंदर essential है. means all the amino compound means organic species having NH2 functional groups are vital for our body. But later on research goes on and on and on on and on and on. फिर पता चला कि ऐसा जरूरी नहीं, each and every amine are essential for our body. So identified compound had amino groups. Later work showed that most of them did not contain any amino group. That's why later E is dropped. So vital amine के अंदर से ये E को निकाल दिया गया and term is vitamin. So nowadays we are using this vitamin. Now vitamins basically classify in the two ways, that is सभी को पता है fat soluble and water soluble. जनरल नॉलेज में भी ये आता है. इवन नाउअडेज केबीसी में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स. वन से वाटर सॉल्युबल, अनदर इज फैट सॉल्युबल. तो फैट सॉल्युबल का मतलब क्या होगा? वो फैट के अंदर सॉल्युबल है ऐसा नहीं. बॉडी के अंदर ये विटामिन बाय मीन्स ऑफ फैट ट्रैवल करते हैं. सो फैट टू फैट वो ट्रैवल करते हैं. दैट is A, D, E, K. These are the vitamin which are fat soluble in nature. And water soluble vitamins कौन से? तो water soluble vitamins है vitamin B and vitamin C. So vitamin B and C are the water soluble and A, D, E, K are fat solubles. So that's why we often require vitamin B and vitamin C just because it's a water soluble. तो बॉडी के अंदर से वो जनरली ज़्यादा अमाउंट में निकल भी जाते हैं by means of urine एंड स्वेट में से ये निकल भी जाते हैं. इसीलिए वी आर फ्रिक्वेंटली यूजिंग विटामिन बी एंड सी नाउअडेज समर ऑन हॉट पिक. सो इसीलिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चार्ट. चार्ट के अंदर तीन पार्ट में, तीन कॉलम में ये पूरा डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज विटामिन नेम, सेकंड सोर्सेस मीन्स कहाँ से वो मिलेगा, एंड लास्ट इज डेफिशिएंसी मीन्स इसके डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होगा. तो सबसे पहले हमें ईच एंड एवरी विटामिन पढ़ना है, विटामिन कौन से सोर्स से मिल रहा है वो पढ़ना है, एंड देन डेफिशिएंसी से क्या होगा. फाइन. कॉम्पिटिटिव के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ ईच एंड एवरी विटामिन हैविंग देयर केमिकल नेम आल्सो. फाइन. जैसे विटामिन ए इज अल्फा टोकोफेरॉल. देन विटामिन B1 है थायामीन, विटामिन B2 इज रिबोफ्लाविन, विटामिन B6 इज पिरिडॉक्सिन, विटामिन B12 मीन साइनोकोबालेमाइन. ये सारे के सारे जो नेम है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. उसके नाम भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद विटामिन ए. नाउ सभी को पता है विटामिन ए किस में से मिलेगा? फिश, लिवर ऑयल, कैरेट, बटर एंड मिल्क में से. डेफिशिएंसी क्या है?
hardening of cornea of the eye and the night blindness. Most important is night blindness. Means basically eye having a retina के अंदर retinol and retinol having cis and transposition. cis and transpositions के अंदर ये continuously migrate होता रहता है. Means अगर आप अंधेरे में है सडनली धूप में चले जाते हो तो आई साइड के अंदर डार्क स्पॉट हो जाते हैं, और वाइस वर्सा अगर आप धूप में क्रिकेट खेल के अंदर घर पे आ रहे हो सडनली डार्क रूम में, सो देन आफ्टर यू कैन नॉट सी एनीथिंग. इफ यू आर सिटिंग इन योर रूम एंड सडनली लाइट चली जाती है तो आपको 2 मिनट के लिए अंधेरा छा जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा. देन यू कैन आइडेंटिफाई द थिंग्स. सो हियर इन केस अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा. मीन्स सिस एंड ट्रांस का जो पोजीशन है वो अल्टरनेट नहीं हो पाएगा और रात को आप देख नहीं सकते हो, दैट इज कॉल्ड इज नाइट ब्लाइंडनेस. और दूसरा हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया. नेक्स्ट इज विटामिन B1. केमिकल नेम है थायामिन. किस में से मिलेगा तो यस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स. डेफिशिएंसी क्या है? बेरी. विटामिन B2 दैट इज रिबोफ्लाविन. किस में से मिलेगा? मिल्क, एग व्हाइट, लिवर एंड किडनी. दैट इज flourishing at the corner of this mouth and lips, and digestive disorder and burning sensation of skin, that is called scoliosis. Scoliosis is all about सलाइवा. कई बार रात को सलाइवा निकलता है, वो सलाइवा एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द माउथ को बर्न कर लेता है. क्यों? क्योंकि वो सलाइवा जो होता है वो एसिडिक होता है, एंड ड्यू टू दिस दैट स्किन इज रियली वेरी सेंसिटिव. वो स्किन जो है वो थोड़ा सा बर्न हो जाती है. दूसरा है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर. मीन्स डाइजेशन इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन. सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन B2. विटामिन B6 once again yeast, milk, egg yolk, cereal and grams. Convulsions is all about बेहोश हो जाते हैं कई बार लोग, that is all about your convulsions. B12 meat, fish, egg and curd. That is pernicious anemia, that is RBC deficient in hemoglobin. किसी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है. Generally in women hemoglobin is 10 to 12 and in male 14 to 16 के आसपास होनी चाहिए, 12 to 14 होनी चाहिए. So कई बार वो हीमोग्लोबिन 10 से नीचे चला जाता है, पूरी स्किन जो है वो येलो हो जाती है, व्हाइटिश पैच हो जाते हैं. That is just because of pernicious anemia की वजह से हो रहा है. विटामिन C, ascorbic acid, citrus foods, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसके अंदर से मिल रहा है. नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी है स्कर्वी. विटामिन D. अब कई बार क्या होता है, लोग बिना कुछ देखे पढ़े सीधा जो सोर्सेस है वो कॉमन लिख लेते हैं. अगर ऊपर से नीचे आप देखोगे तो कॉमन है मीट, फिश, एग, यीस्ट, मिल्क, ये सारी चीज बहुत ही कॉमन दिखाई दे रही है आपको. सो नॉट नेसेसरी एवरी टाइम आप सभी के अंदर ये डाल दो. विटामिन D पूछा है फिर भी लोग लिख लेते हैं एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, फिश एंड एग यॉक. अब विटामिन C कभी भी मिल्क में से नहीं मिलता है, फिर भी लोग उसमें लिख लेते हैं मिल्क एंड देन एग एंड सीरियल्स एंड समथिंग लाइक दैट. तो आप थोड़ा सा देखिएगा कौन सा विटामिन पूछा है, उसके हिसाब से ही आप उसके सोर्सेस लिखिएगा. विटामिन D, सॉफ्ट बोन्स दैट इज कॉल्ड रिकेट्स, एंड ऑस्टियोमेलासिस दैट इज सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन्स इन एडल्ट. मैनी टाइम्स व्हाट हैपन, जब बच्चे छोटे होते हैं तो जब 1 से 3 साल के अंदर उनको धूप में थोड़ा टाइम ले जाते हैं सुबह, अर्ली मॉर्निंग, दैट इज इन बिटवीन 7 to 9. इट इज एसेंशियल फॉर स्ट्रेंथन ऑफ बोन ग्रोथ के लिए और बोन को स्टेबलाइज होने के लिए वो चाहिए. कई बार वो नहीं देते हैं तो वो बोन सॉफ्ट रह जाते हैं, और गिरते पड़ते ही थोड़ा सा खेलने गए, गिर गए तो सीधा बोन टूट ही जाता है. नो क्रैक नथिंग, सीधा टूट जाता है. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस deficiency of vitamin D. Next is vitamin E. Vitamin E is vegetable oils like wheat gram oil, sunflower oil, etc. Increase in fragility of this RBC and the muscular weaknesses. Vitamin K किस में से मिलेगा तो green leafy vegetables. Increase in blood clotting time. So these are the chart of all the vitamins. तो ये vitamins अच्छे से आप लोगों को लर्न बाय हार्ट करना है. कैसे याद करोगे? सबसे पहले आप विटामिन के नाम लिखोगे, नाम के बाद कौन से सोर्सेज से मिल रहा है, लास्ट इसका डेफिशिएंसी. कई बार ये एमसीक्यू में उल्टा भी पूछते हैं, डेफिशिएंसी दिया हुआ है, आपको विटामिन पहचानना है, और विटामिन दिए होंगे और आपको उसमें से नीचे से डेफिशिएंसी भी करना है. सो अच्छे से ये टेबल प्रिपेयर कर लीजिएगा. आई विल शो यू द chemical name of this all the vitamins.
सो ये देखिए विटामिन ए साइंटिफिक नेम है इसका रेटिनॉल। विटामिन B1 हमने डिस्कस किया थायामीन, विटामिन B2 रिबोफ्लाविन, विटामिन B6 स्पिरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालेमाइन, विटामिन C इज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D इज कैल्सिफेरॉल, विटामिन E इज अल्फा टोकोफेरॉल, विटामिन E इज फेलोक्विनोन एंड विटामिन H इज बायोटिन। विटामिन H के बारे में हमने नहीं पढ़ा। विटामिन H किस में से मिलेगा? मिल्क, यीस्ट एंड लीवर। एंड लॉस ऑफ हेयर, स्किन डिसीज एंड पैरालिसिस, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। नीट के स्टूडेंट के लिए भी विटामिन H एक या दो बार नीट में भी पूछा गया हुआ है। फिर से एक बार आप साइंटिफिक नेम अच्छे से याद कर लीजिएगा, टेबल के अंदर लिख लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन साइंटिफिक नेम से भी पूछा जाता है। दिस विटामिन मीन साइंटिफिक नेम से पूछेंगे, पेरिडॉक्सिन का डेफिशिएंसी बताओ, या फिर साइनोकोबालेमाइन का डेफिशिएंसी बताओ, या फिर कैल्सीफेरॉल का डेफिशिएंसी बताओ और समथिंग लाइक दैट। तो आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर थर्ड सेशन ऑफ विटामिन। विटामिन के अंदर और कुछ नहीं है। नेक्स्ट सेशन हम डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में दो पार्ट होंगे, DNA एंड RNA। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन।